Hello subscribers, welcome back to my YouTube channel. So in our previous session we have learned what is NumPy library, that is how to define NumPy arrays or how to perform different operations or built-in functions of NumPy, right? So today we'll learn about pandas. Pandas is a library written for the Python programming language, basically used for data manipulation and analysis. Okay, so particularly it offers data structures and operations for manipulating numerical tables and series. Okay, so let's see. Pandas is a fast, powerful, flexible, and easy to use open source data analysis and manipulation tool. Okay, so basically we'll use pandas for analyzing our data and to manipulate our data in various types, right? So pandas basically deals with three data structures, that is series, data frame, and panel. So basically what is series? Series is a one-dimensional labeled array capable of holding data of any type, either integer, string, float, Python, objects, etc. Okay, and the access label are collectively called index. So we'll see how we can define 1D labeled array using series. Okay, so next data structure is data frame. A data frame is a two-dimensional data structure, that is, data is aligned in a tabular fashion in rows and columns. Okay, so for 2D data structure we'll use data frames. And the last is panel. A panel is a 3D container of data. So for 3D arrays we'll use panel. Okay, so for 1D we'll use series, and to make 2D arrays or 2D data structure we'll use data frames, and for 3D we'll use panel. Okay, so let's see the pandas series first. So I've written the syntax of series. So this is pandas dot series, and S is always capital, and in the parenthesis first one is data, index, and then data type, and then copy. So basically data means we can take various forms of data, like we can store nd array or list or constants, right? So by index means index value must be unique. Okay, so by default अगर हम इसमें np.arange को रिटर्न करते हैं और उसमें कोई अगर हम इंडेक्स नहीं देते तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है इंडेक्सिंग. ओके, एंड फॉर द डाटा टाइप इसमें भी अगर हम कोई गिवन डेटा टाइप नहीं देते तो ये अपने अकॉर्डिंग जो हमने डेटा स्टोर करा है उसको ऑटोमेटिकली इन्फो कर लेता है. ओके, एंड द लास्ट इज टू कॉपी डेटा. ओके, सो बाय डिफॉल्ट इट्स वैल्यू इज फॉल्स. सो लेट्स स्टार्ट बाय इंपोर्टिंग ऑल द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज. सो मैंने यहाँ पे फर्स्ट numpy इंपोर्ट किया है एज np, pandas इंपोर्ट किया है एज pd, एंड random एज rd. सो लेट्स रन दिस. सो नेक्स्ट इज यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल नेम लिया है a, जिसको मैंने असाइन किया है pd डॉट सीरीज. ये याद रखना है हमें कि जो ये सीरीज का s है ये ऑलवेज कैपिटल केस में रहेगा. सो यहाँ पे मैंने एम्प्टी पेरेंथेसिस दिए हैं. सो लेट्स रन दिस. तो जब हमने इसको रन किया तो इसने सीरीज रिटर्न किया है विद एम्प्टी पेरेंथेसिस, एंड डाटा टाइप उसने दी है फ्लोट 64. ओके, सो नेक्स्ट इज we'll check the type of A. So type and in parenthesis A. So let's run this. तो इसने रिटर्न किया है pandas dot core dot series dot series. ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे मैंने एक और वेरिएबल लिया है arr which is equal to np dot array. यहाँ पे हम जो डाटा है वो कौन सा स्टोर कर रहे हैं, एरे की फॉर्म में, और जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं वो उसके आइटम्स होंगे. तो यहाँ पे है ए बी सी डी, 4 आइटम्स हैं. ओके, एंड इन नेक्स्ट लाइन मैंने जो pandas का सिंटैक्स है वो डिफाइन किया है, s इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, एंड इन पेरेंथेसिस ARR जो हमारा एरे था. ओके, सो लेट्स रन दिस.
तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये एक एरे रिटर्न करेगा 1D में, जिसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होगी बाय डिफॉल्ट, अगर हमने इसमें कोई इंडेक्स अलग से मेंशन नहीं किया है। और जो उसका डेटा एलिमेंट्स होंगे वो जो हमने डिफाइन किए हैं ABCD, वो उनको उस इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग शो करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज चेंजिंग इंडेक्सिंग इन सीरीज, इंडेक्स इन सीरीज। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक और सेम एरे बनाया है ABCD जिसमें 4 आइटम्स हैं, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है S इज इक्वल टू PD.series एरे एंड देन कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ हम कोई भी अपनी मर्जी का कोई भी नंबर ले सकते हैं। सो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 10, 11, 12, 13। तो जब हम इसको रन करेंगे तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज थी 0 से स्टार्ट हो रही थी, 0, 1, 2, 3, ये उसने उसको चेंज करके 10, 11, 12, 13 से कर दिया है। तो इसमें हम अपनी इंडेक्सिंग को कुछ भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो हमारा इंडेक्स है वो 0 से ही स्टार्ट हो। ओके, सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेम, तो जो यहाँ पे मैंने एरे लिया है वो एक रैंडम एरे लिया है विच इज rd.randn एंड उसमें एलिमेंट्स दिए हैं 5। तो जो हमारा एरे रिटर्न होगा उसमें 5 एलिमेंट्स होंगे बिटवीन -1 to +1। ओके, और जो नेक्स्ट लाइन है उसमें मैंने इंडेक्स भी लिखे हैं विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 100 देन 1, 2, 3, 4। ओके, सो लेट्स रन दिस। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये जो इंडेक्स वैल्यू है वो स्टार्ट करेगा 100 से, और जो वैल्यूज हैं वो रैंडम वैल्यूज आएंगी बिटवीन -1 to +1। सो हम इसको जितनी बार भी रन करेंगे ये हमेशा डिफरेंट वैल्यूज रिटर्न करेगा, राइट। सो नेक्स्ट इज सीरीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिक्शनरी। तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो सीरीज में डेटा स्टोर कर सकते हैं वो हम डिक्शनरी, लिस्ट, एरे किसी भी फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो विल सी हाउ टू स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो मैंने यहाँ पे एक D वेरिएबल से डिक्शनरी डिफाइन की है, उसमें मैंने की वैल्यू 4 की वैल्यू पेयर्स डिफाइन किए हैं। A को वैल्यू असाइन की है 10, B 20, C 30 एंड D 40। सो लेट्स रन दिस फर्स्ट। और यहाँ नेक्स्ट सेल में मैंने यूज किया है PD स्टेटमेंट, जिसमें PD.series और जो हमारी डिक्शनरी का नेम है मैंने वो पैरेंथेसिस में वैल्यू दी है। ओके, सो लेट्स रन दिस। तो इसने वही रिटर्न किया है, इंडेक्स वैल्यूज जो हमारी की वैल्यू थी ABCD एंड जो उसको वैल्यू असाइन की थी 10, 20, 30, 40, इसने वही सेम वैल्यू असाइन की है। ओके, तो अगर हमें कोई भी सीरीज का अलग से इंडेक्स चेक करना होगा कि जो हमारा ये पर्टिकुलर डेटा सीरीज है उसमें क्या इंडेक्स वैल्यू है, तो हम उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग S.index। सो जब हम इसको रन करेंगे तो जो भी हमारा S सीरीज में डेटा का इंडेक्स है ये उसको रिटर्न कर देगा। तो इसमें हमारे पास है ABCD, तो ये वही रिटर्न कर देगा ABCD। ओके, सो नेक्स्ट इज pandas डेटा फ्रेम। सो बेसिकली डेटा फ्रेम इज यूज्ड फॉर 2D एरेज, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले मैंने इसमें एक एरे स्टोर किया है विच इज 2D। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है A जिसमें np.array डिफाइन किया है, और 2 एरेज लिए हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स लिए हैं, जिसमें फर्स्ट एरे में है 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट 4, 5, 6। सो अब वैसे ही जैसे हमने सीरीज यूज किया था, इसमें भी हम डेटा फ्रेम का जो D है और F है वो कैपिटल रखेंगे। बाकी जो भी सारा सिंटेक्स है वो सीरीज वाला ही है, बस इसमें सीरीज की जगह हम डेटा फ्रेम लिखेंगे और विद D कैपिटल एंड F कैपिटल। सो मैंने यहाँ पे लिया है एक डेटा फ्रेम DF वेरिएबल विच इज इक्वल टू PD.dataFrame, और पैरेंथेसिस में मैंने जो एरे है उसका नेम दिया है। सो लेट्स प्रिंट दिस। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा फ्रेम रिटर्न हुआ है वो रोज और कॉलम्स की शेप में हुआ है, राइट, एक टैबुलर फॉर्म में हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रोज हैं विद इंडेक्स 0 and 1, और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं विद इंडेक्स 0, 1, 2, राइट। सो यहाँ पे अगर हमें अपने कॉलम्स चेक करने हैं कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, जैसे ये तो डेटा फ्रेम है जो बहुत बहुत छोटा है, जो हम आगे डेटा फ्रेम्स डिफाइन करेंगे उसमें काफी सारे कॉलम्स होते हैं,
राइट, किसी में 10 है, 20 है, काफी सारे कॉलम्स होंगे। तो df डॉट कॉलम इसलिए यूज करते हैं टू सी आर कॉलम इंडेक्स और कंटेंट। ओके, सो मैंने यहाँ पे df डॉट कॉलम्स डिफाइन किया है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो ये रेंज इंडेक्स रिटर्न करेगा, स्टार्ट इज इक्वल टू 0, स्टॉप 3 और स्टेप 1। ओके, so next is index for changing row index and column is used for changing column index। तो यहाँ पे मैंने एक डेटा फ्रेम डिफाइन किया है जिसमें मैंने रैंडम एरे लिया है और इसमें जो उसका टाइप है वो रैंड इंट लिया है। तो यहाँ पे मैंने 10 एलिमेंट्स लिए हैं और जो उसका साइज है वो 5,5 होगा। मतलब जो हमारे पास डेटा फ्रेम रिटर्न होगा उसमें 5 रोज होंगी एंड 5 ही कॉलम्स होंगे, राइट। और जो ये हमने इंडेक्स यूज किया है कॉमा के बाद इज इक्वल टू लिस्ट ABCDE। तो मतलब कि जो हमारा रो का इंडेक्स होगा वो स्टार्ट होगा A से, ABCDE। 5 हमें पता है उसकी 5 रोज हैं तो हमने 5 इंडेक्स दे दिए हैं इसमें। और कॉलम्स क्या करेगा, जो हमारा कॉलम्स का इंडेक्स है उसको FGHIJ रिप्लेस कर देगा, राइट। सो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा फ्रेम रिटर्न हुआ है जिसमें जो रो के इंडेक्सेस हैं वो हैं ABCDE, ये थोड़े बोल्ड टाइप में है। और जो कॉलम है उसमें जो उसके इंडेक्स हैं वो हैं FGHIJ। ओके, तो इसको हम जितनी बार भी रन करेंगे ये हर बार अलग अलग वैल्यूज रिटर्न करेगा क्योंकि हमने रैंडम एरेस का यूज किया हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट इज डेटा फ्रेम यूजिंग अ डिक्शनरी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक डेटा डिक्शनरी ली है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट है नेम और उसमें लिस्ट है ABCD और नेक्स्ट लिया है मार्क्स एंड उसमें लिस्ट दी है 1 2 3 4। ओके, सो लेट्स रन दिस। तो यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट रो रिटर्न हुई है उसमें है नेम और उसके कंटेंट है ABCD और जो नेक्स्ट रो है वो है मार्क्स जिसमें की वैल्यूज हैं 1 2 3 4, राइट। सो जब हम इस डिक्शनरी को एक डेटा फ्रेम में यूज करेंगे तो ये क्या वैल्यूज रिटर्न करेगा, 0 1 2 3 4। इंडेक्सिंग इसमें डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ डिक्शनरी का नेम लिखा है और यहाँ पे हमारे जो कॉलम्स हैं वो है नेम और मार्क्स और जो भी हमने उसको की वैल्यू पेयर में जो वैल्यूज असाइन की थी वही सेम वैल्यूज इसने रिटर्न कर दी है, राइट। सो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ डेटा फ्रेम। तो जितने भी डेटा फ्रेम के फंक्शंस हैं वो सबके सब हमें याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। हम जस्ट क्या करेंगे, जो भी जैसे आपने कोई डेटा फ्रेम डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी, जैसे मैंने यहाँ पे df3 डिफाइन किया था तो मैं यहाँ पे df3 के बाद डॉट प्रेस करूंगी और टैब प्रेस करूंगी। तो मैं जैसे ही टैब प्रेस करूंगी जो भी डेटा फ्रेम के फंक्शंस होंगे वो यहाँ पे हमें सारे के सारे शो हो जाएंगे और जो भी आपको यूज करना है उस पर क्लिक करो और अगर उसका फंक्शन समझ नहीं आता तो शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करके उसका डॉक स्ट्रिंग देख सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी द फर्स्ट फंक्शन ऑफ डेटा फ्रेम। मैंने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम डिफाइन किया है df4 के नाम से और उसमें मैंने रैंडम वैल्यूज दिए हैं रैंड इंट और उसका साइज लिया है मैंने 50 विद शेप 20, 10। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, जो हमारा डेटा फ्रेम रिटर्न होगा वो रिटर्न होगा विद 20 रोज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 to 19 और जो कॉलम्स हैं वो होंगे 10। ओके, तो जो भी हमारी सैम्पल रैंडम सैम्पल वैल्यूज रिटर्न होंगी वो रिटर्न होंगी बिटवीन 0 to 50। ओके, सो जो भी वैल्यूज आएंगी वो बिटवीन 0 to 50 होंगी, राइट। सो नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे कॉलम्स इज इक्वल टू लिस्ट ABCDEFGHIJ। तो जो भी हमने यहाँ पे 10 कॉलम्स डिफाइन किए हैं उन सबके मैंने इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे टाइप किए हैं और जो उसकी डेटा टाइप होगी वो मैंने यहाँ पे फ्लोट डिफाइन की है, राइट। सो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो रो का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कॉलम का मैंने डिफाइन किया था A से स्टार्ट होगा तो वैसे ही हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास 20 रोज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 to 19 एंड 10 कॉलम्स हैं, राइट।
सो अब हम इससे फर्स्ट फंक्शन देखते हैं, वो मैंने यूज किया है df4.head। तो बेसिकली head इज यूज टू रिटर्न द फर्स्ट n रोज, राइट। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल टू 5। तो जब भी हमें अपने डेटा फ्रेम का कंटेंट चेक करना होगा कि उसमें क्या रोज हैं क्या कॉलम्स हैं, तो हम df डाटा फ्रेम डॉट हेड यूज करेंगे। तो इससे हमें जो भी हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट 5 कॉलम का जो डेटा होगा वो रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो लेट्स रन दिस। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट 5 रोज थी उसका कंटेंट रिटर्न हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 to 4। और अगर हमें यहाँ पे 10 फर्स्ट रोज का डाटा जो है डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पे 10 डिफाइन करेंगे। तो ये 0 to 9 इंडेक्स जो भी सारा डेटा होगा वो रिटर्न करेगा, राइट। तो बेसिकली जैसे ही हमारे पास हेड फंक्शन है वैसे ही टेल है। तो टेल इज अपोजिट ऑफ हेड फंक्शन। उसमें हमें फर्स्ट 5 रोज दिखती हैं, इसमें हमें लास्ट 5 रोज दिखती हैं बाय डिफॉल्ट। तो लेट्स रन दिस। तो जो भी हमारे पास लास्ट 5 रोज होंगी, जैसे यहाँ पे 15 to 19 इंडेक्स है, वो रिटर्न हो जाएगी। और यहाँ पे भी हम कोई भी नंबर डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे 7 रिटर्न करूं तो जो ये लास्ट 7 रोज होगी वो रिटर्न करेगा। क्लियर। तो नेक्स्ट फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया है डॉट डिस्क्राइब। लेट्स सी द डॉक स्ट्रिंग ऑफ डिस्क्राइब। सो बेसिकली इट जनरेट्स डिस्क्रिप्टिव statistics that summarize the central tendency, dispersion, and shape of a dataset's distribution, excluding not a null values, right? So basically describe is used to see all the statistic value of our data frame. So let's run this. तो ये रिटर्न करेगा जो भी हमारी डेटा फ्रेम में कंटेंट है, जो भी मतलब बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उसका फर्स्ट इसने रिटर्न किया है कॉलम काउंट, नेक्स्ट इज मीन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, देन मिनिमम, 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल एंड मैक्सिमम। तो जो हमारा ए कॉलम है उसमें जितनी भी रो का डाटा है, मतलब कि जो हमारी फर्स्ट कॉलम का डाटा है ना, उसमें से जो मैक्सिमम है वो 49 वैल्यू है, राइट। ऐसे जो उसका मिनिमम वैल्यू है वो है 2, और उसका जो मीन है वो है 29.2 एंड द काउंट इज 20। तो जो हमारी रोज थी वो हमने डिफाइन की थी कि वो 20 होंगी। तो बेसिकली काउंट में तो सारी कॉलम्स में सेम होगा, और तो इसने बेसिकली सारी कॉलम्स का जो कंटेंट है उसका मिनिमम वैल्यू रिटर्न किया है, मैक्सिमम उसका जो 25% वैल्यू है वो रिटर्न की है, 50 परसेंटाइल, 75 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके। सो जब भी हमें अपने डेटा फ्रेम का स्टैटिस्टिक वैल्यूज चेक करनी होगी तो हम डॉट डिस्क्राइब को यूज करेंगे। सो नेक्स्ट इज डॉट इन्फो। सो लेट्स सी द डॉक स्ट्रिंग ऑफ इन्फो। तो प्रिंट अ कॉन्साइज समरी ऑफ अ डेटा फ्रेम। सो बेसिकली डेटा फ्रेम इन्फो हम तब यूज करते हैं जब अपने डेटा फ्रेम का जो कॉलम्स हैं, रोज हैं, उनका इंडेक्स वैल्यू चेक करना हो, और उसकी डेटा टाइप चेक करनी हो, या उसमें चेक करना हो कि जो सारी वैल्यूज हैं, सारा कंटेंट है वो फिल्ड है या नहीं, किसी में नल वैल्यूज तो नहीं है। नल वैल्यूज मतलब कोई वैल्यू असाइन ही नहीं हुई है। तो लेट्स सी द इन्फो। तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, फर्स्ट क्लास रिटर्न कर रहा है pandas डॉट कोर डॉट फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम। ओके। नेक्स्ट इज रेंज इंडेक्स। रेंज इंडेक्स हमें पता है 20 एंट्रीज है, और इंडेक्स है 0 to 19, राइट। और जो डेटा कॉलम्स हैं वो है 10 कॉलम्स, जैसे कि हमने 20,10 जो उसकी शेप थी वो डिफाइन की थी। और जो कॉलम्स के नेम है वो भी यहाँ पे डिफाइन है ABCDE। और उसमें जो डेटा टाइप है वो सब में फ्लोट है, सेम है फ्लोट 64। और इसमें सब में 20 नॉन नल वैल्यूज है। नॉन नल वैल्यूज मतलब कि जो सारी रोज में जो कंटेंट है वो फिल्ड है किसी ना किसी वैल्यूज से। अगर यहाँ पे 20 की जगह कोई और वैल्यू होती कि उससे कम होती, मतलब 19 या 18, तो उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि इसमें अगर यहाँ पे
डी कॉलम में 18 नॉन नल वैल्यूज होती, तो इसका मतलब क्या होता, 2 उसमें नल वैल्यूज हैं, राइट। तो हम उसको चेक करते हैं कि वो कौन से इंडेक्स पे है, और जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सब करेंगे आगे। तो जो डॉट इन्फो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आगे जब हम प्लॉटिंग करेंगे या डाटा एनालिटिक्स पार्ट करेंगे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये डॉट इन्फो फंक्शन होता है। जब भी हमें अपना डेटा फ्रेम का एक समरी चाहिए, एक पर्टिकुलर आइडिया चाहिए कि उसमें हमने क्या क्या डाटा स्टोर किए हैं, कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, उनकी डेटा टाइप्स क्या हैं, या उनमें नल वैल्यूज हैं या नहीं, तो हम सबसे पहले डॉट इन्फो रन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज टू CSV। तो बेसिकली CSV का मतलब क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट। तो ये फंक्शन क्या करता है, जो हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम लिखा है तो इसको एक सेपरेट फाइल में रिटर्न करता है विद एक्सेल फॉर्मेट, या यू कैन से विद कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो जब मैं इसको रन करूंगी तो जो हमने डेटा फ्रेम डिफाइन किया था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा CSV फॉर्मेट में। और इसको हम देख कहाँ सकते हैं, जो हमारा डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, जैसे मैंने सारी जो मेरी नोटबुक्स हैं वो डेस्कटॉप पाइथन में सेव की हैं, तो इसको हम एक बार खोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमने CSV फाइल का जो नेम यहाँ पे डिफाइन किया है, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि वो टेस्ट पांडास डी फ्रेम के नाम से सेव हो जाए, तो यहाँ पे सेम नाम का एक फोल्डर होगा, ये रहा टेस्ट पांडास डी फ्रेम। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो जो भी हमारे डेटा फ्रेम का डाटा होगा वो सब का सब इसमें स्टोर हो जाएगा विद कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो जो हमारी वैल्यूज हैं वो किससे सेपरेटेड है, कॉमा वैल्यूज से। ओके, तो जब भी हमें अपना डेटा फ्रेम का कंटेंट है जो उसको सेव करना है किसी एक सेपरेट फाइल में, तो हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं टू CV, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे इंडेक्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं डेटा फ्रेम पे, और कैसे कोई भी पर्टिकुलर कॉलम या रो ऐड कर सकते हैं, या अगर हमने कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना हो पूरे पूरे डेटा फ्रेम में तो वो कैसे कर सकते हैं। सो थैंक यू।